बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। I personally want to know what is Madam Chief Minister for you? Um, it's just a film which is based on a girl who is um born into an oppressed family, loses her father when she's born, has to go through a lot of brutalization and um, a lot of violence, and then like she ends up meeting somebody who mentors her and helps her uh, in realizing the leader that she can be, and then she becomes the chief minister of a state. That's basically the story. Okay, so हमने हमेशा देखा है ऋचा मैम आप काफी पावरफुल किरदार को चूज करती हैं। व्हेन तारा का किरदार आपको आया था तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? इट वाज अ सडन डिसीजन और यू टुक लिटिल टाइम टू डिसाइड कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, I didn't think actually anything about करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. मुझे लगा करना चाहिए क्योंकि मुझे लगा ऐसी कहानियाँ ही कम आती हैं, खासकर मेन स्ट्रीम में तो बहुत ही कम आती हैं. और I thought it's a really good part with a good director, and I wanted to tell that story. ओके मैम लाइक जो आपका किरदार है तारा का काफ़ी पावरफुल किरदार है एंड इट्स द स्टोरी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन you have done before like shooting? Before shooting, actually my director gave me a few books to read, so I read those. I tried to understand the theme also, somewhere the context of the film also. So I read a bit about that. Yeah, that's it. And we had some diction workshop. मतलब diction के लिए हमने कुछ चीज़ें accent वगैरह experiment किया था. और फिर हमने dialogues की workshop की, acting की workshop की, उसका character work किया कि किस तरह से उसके बोलचाल पे, उसकी body language पे थोड़ा सा काम किया. Okay ma'am, any inspiration you have taken from any female leader like? Actually, not just female leaders. I studied lots of politicians and how they would conduct themselves in public, how they would give speeches to try and connect with the person who's sitting at the back of the political rally. And it's like a concert. There are thousands of people. There's as many people. So yeah, I just tried to study how they would speak, how they would react, how they would hold their pauses, things like that. But both from male and female speeches. Some leaders have a knack of connecting with the audience. They are able to connect with their voters, like with humor, like Lalu Prasad Yadav. Some people are very inspirational. They hammer it a lot, and they are able to reach the person right at the end. So those kind of things I try to study because she is supposed to be a very charming leader. So I just want to know like how inspiring your journey was throughout shooting like Madam Chief Minister की जितनी भी shooting हुई है, like how was your journey, how inspiring it was, and what sort of things you got to learn from this movie? I got learn a lot about many things to do with our country, how our villages are structured, lots of things about the caste system, how we are still primarily organized around it, and just the difficulties women in politics face. I learned a lot. I actually became very attached to my character Tara, and I wanted to do justice to her. I wanted to make sure that people understood her for the oddball that she was. आपके साथ साथ ऐसे कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ डिस्कशन, एनी पॉलिटिकल डिस्कशन you had throughout the shoot? No, I mean the thing is, the people who I've worked with them before in different capacities. मैंने सौरभ सर के साथ एक दो और फिल्में की हैं. मानव के साथ कुछ नहीं किया था, अक्षय उग्रा के साथ भी नहीं, पर शुभ्रुदा के साथ बहुत पहले एक सेम थिएटर ग्रुप में थी. तो ये सारे इतने मंझे हुए कलाकार हैं कि पूरे टाइम मुझे तो इनसिक्योरिटी रहती थी क्योंकि
बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और हर तरह के काम करते हैं, मतलब मानव लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं और एक्ट भी करते हैं, विच कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग। सौरभ सर ऑल्सो लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं, टीटी भी खेलते हैं। तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं इंटिमिडेटिंग हो जाता था। पर मैंने पूरी कोशिश की कि जैसे कि तारा है फ़िल्म में, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली है, तो उस तरह की कोशिश मैंने भी की फ़िल्म की शूटिंग के दौरान। अब देखते हैं ऑडियंस को कैसी लगती है। फैमिली का क्या रिएक्शन आया आपके आफ्टर सीइंग द ट्रेलर, आफ्टर सीइंग तारा's रोल इन द फिल्म? फैमिली का क्या कुछ रिएक्शन आया? फैमिली, वो मैं चाहती हूँ फ़िल्म देखें, उस पे रिएक्ट करें। लुक देख के तो थोड़े देर के लिए कन्फ्यूज़ हो गए थे, उनको लगा मैंने बाल कटा लिए हैं, तो पर फैमिली को आई होप फ़िल्म पसंद आए, वो भी मेरे लिए ऑडियंस की तरह ही हैं। एंड दे कैन बी क्वाइट क्रिटिकल व्हिच इज़ आल्सो गुड। इट कीप्स मी वेरी ग्राउंडेड। Okay, ma'am, one thing I want to ask, like after so much of hard work and your role is so amazing, so powerful, but sometimes there are some people who troll unnecessary. How you tackle it? आई डोंट टैकल इट, सी व्हाट हैपेंस इज़ कई बार उनको बहुत सीधी-सी बात है, अगर मुझे बुरा नहीं लगता पहली बात तो। और मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगता है, येस आई गेट कन्फ्यूज़्ड, बट मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में जो गुस्सा है, वो कहीं न कहीं निकल जाता है। अगर उनको किसी चीज़ को लेकर मुश्किल हुई है, उनको लगता है कि कोई चीज़ आपत्तिजनक है, तो आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ही बार एक्सप्लेन कर दो कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, या आप ये भी कह सकते हो कि हमने किया ही नहीं, इसमें मेरा हाथ नहीं था, फिर भी उनका गुस्सा बरकरार रहता है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि चल भाई बोल लो, जो इतना गुस्सा है निकाल लो, कहीं न कहीं तो निकलेगा। इस फ़िल्म में अनफॉर्च्युनेटली थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है, बट देखिए फ़िल्में हमेशा के लिए बनती हैं। मुझे पता है मैंने क्या बनाया है, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और किन रिसोर्सेज़ में हमने शूट किया, किस तरह का किस तरह का ऑपोज़िशन मुझे खुद मिला जब मैंने बोला मैं ये फ़िल्म करना चाहती हूँ। तो कुछ मेरे भी शुभचिंतक थे, उन्होंने बोला ये पॉलिटिकल चीज़ों पे या ऐसे कास्ट जैसी चीज़ों पे कुछ नहीं बनाना चाहिए, बहुत निंदा होती है, हो भी रही है। पर मैं ये सोच रही हूँ कि आज से अगर 4-5 साल बाद लोग ये ट्विटर पे जो हो रहा है वो याद रखेंगे कि जो फ़िल्म ने कहा और जो हमारे काम ने कहा वो याद रखेंगे। तो ऑब्वियसली आई थिंक इफ द फिल्म कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो कहने की कोशिश कर रही है, वो इन छोटी-मोटी कंट्रोवर्सीज़, धमकियाँ, ट्रोलिंग इस सब से कहीं ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। तो आई डोंट रियली थिंक अबाउट ट्रोल्स अनफॉर्च्युनेटली। ट्रोल्स को काफ़ी दिल दुखता है, कई बार वो कंप्लेन भी करते हैं कि हमें ब्लॉक कर दिया, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे, बट सच तो यही है, आई डोंट केयर अबाउट दैम।